Okay, class, settle down fast, please. So, if I do remember, yesterday we have started with the maxima and minima. In the part of while discussing the applications of the derivative, first I have first I have told you that if you have to calculate the rate of the change, if you have to calculate the rate of change of any physical quantity, then you must have to go with differentiation. Rate of change of position, rate of change of rate of change of velocity, rate of change of rate of change of price you can take, है ना? So if anything is changing with the time, if any physical quantity is changing with the time, then we can say that then we can evaluate it or calculate it with help of differentiation. This was the first application. Then the next application was finding slope of a curve. It was the next application. And that is very important, most prominent application part of the derivative is to find the maxima and minima of a function. To find the maxima and minima of a function. So I have told you that if function can take, suppose there is a function y and x, means here y is a function of x. So this function can be any type of so this function can be like this. So the function can take the maximum value as well as minimum value. This point is called as the point of maxima and this point is called as the point of minima. At both points, either on maxima or on minima, the dy by dx is equal to 0. So if you have given a function, if I have given a function that try to find out the points of maxima and minima, then what you have to do? You must have to take the derivative of the function, right? And try to put the derivative of the function is equal to 0. Then whatever points you will collect, you will get. Those points can be either maxima or minima. But how we move further means we have to go closer with that. What are the points of the maxima and what are the point of the minimas? Then for that purpose we have to go with next derivative. For that purpose what we have to do? We have to go for the next derivative. If the next derivative is negative, then the point was maxima, and if next derivative is positive, then point was minima. So this was the whole concept, right? Now try to go with one example here. Now we have a very well-known graph. Now we have a very well-known graph of the sine, isn't? So we know the graph of the sine. We know the graph of the sine, right? Then how graph of the sine looks like? How the graph of sine looks like? Isn't? So this is something like this now. Suppose this is sine x and this one is a x. Is it visible? Is it visible in the board? Right. Suppose this is the sine x and this is the x. So you can write y is equal to sine x. So as the x will change, the y will change and the graph would be like this. है ना बेटा? Graph ऐसा होगा. The graph would be like this. Now this angle is 0. This angle is 90 degree. This angle is and this angle is great. Now can you get what is the maximum value of the function? It is a +1. What is the minimum value of the function? Exactly, this is a -1. Now where the maxima is happening? Where the maxima is happening? So you can say that x is equal to 90 degrees the point of maxima, and at that point the value of the function is +1, isn't? 90 degrees is the point of maxima, and at that maxima
at that maxima, the value of the function is +1. And what is the point of minima? What is the point of minima? 270 degree is the point of minima, and at that point y minimum is -1. So this is the general, this is the general observation of the with the help of the graph. So this is a general observation. This is a general observation with help of the graph. If I have provided you the graph, then immediately you have observed the graph and you have evaluated the maximum value of the function, minimum value of the function, and as well as the point of maxima and point of minima. मे बी ऐसे बहुत से फंक्शंस हों जिनका नाम लेते ही आप उसका ग्राफ आपको याद हो जाए तो आप बता लोगे, बट देयर कैन बी वेरियस फंक्शंस कि दे आर प्रोवाइडेड इन द इक्वेशन फॉर्मेट एंड यू डोंट नो अबाउट द ग्राफ, अब उसका ग्राफ नहीं आपके पास है, देन हाउ कैन यू चेक, राइट, है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको मैंने कोई आर्बिट्री फंक्शन दे दिया, सपोज आई हैव गिवन यू y = x² प्लस y = x² प्लस 2x प्लस 5, देन हाउ कैन यू गेस? अब तो दिक्कत हो जाएगी ना, unless until you don't have a graph, you can't decide कि मैक्सिमा कितना है, मिनिमा कितना है, कब है. तो फॉर दैट पर्पज वी गो फॉर द कन्वेंशनल प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको कल बताया है, दैट हाउ टू इवेल्युएट द मैक्सिमा एंड मिनिमा. नाउ इन दिस इलस्ट्रेशन बेसिकली we have already shown you that sin x, this is the maxima, this is the minima, this is the maximum, this is the point of maxima, this is the point of minima, but the same conclusion can be drawn with help of the concept of the maxima and the minima theoretically. So if you don't have a graph, आप इसको theoretically भी, आप इसको mathematically भी निकाल सकते हो और हमारा conclusion नहीं आएगा. कैसे आएगा? Step number 1, what function you have provided with? That is y = sin x. For this function you have to evaluate point of maxima as well as point of minima. Now just go for the step number 1. What is the step number 1? Try to take the differentiation of the function and equate it with 0. Now this is going to be d by dx of sin x, and that is equal to 0. Then d by dx of sin x, it's a cos x. d by dx of sin x is cos x. So cos x is equal to 0. So there are the various there may be various values of the x at which cos x will be 0, because cos x is a periodic function. ऐसा तो ढेर सारा एंगल होगा जहां पे cos x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, बट वी हैव लिमिटेड द रेंज. हमने इस रेंज को लिमिट कर दिया. मैंने कहा नहीं, आप 0 से 360 डिग्री के बीच में ही आंसर दो, ठीक है? So can you get at what values of the x cos x would be 0? What are those values? X is equal to 90 डिग्री. cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो x is equal to 90 डिग्री. Then one more, in between 0 to 360. cos 90 की वैल्यू 0, cos 270 का भी वैल्यू. तो there are two values at which dy over dx would be 0. Means there are 2 points 90 degree and 270 degree, they can be either maxima or minima. बोलो 90 डिग्री sin x का क्या हो सकते हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री ही में ही ये दो पॉइंट हैं जो कि साइन का क्या हो सकते हैं? मैक्सिमा हो सकते हैं या मिनिमा हो सकते हैं. पक्का? नाउ वी हैव टू चेक कि आखिर इस 90 डिग्री और 270 डिग्री में कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है. क्योंकि अभी तक हमें यह पता है कि 90 डिग्री भी क्या हो सकता है? 90 डिग्री भी हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
और 90 डिग्री हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी हमें यही पता है भाई कि 270 डिग्री क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और 270 डिग्री क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉइंट तो दो नेचर के नहीं हो सकते हैं, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा होगा, पर हमें यह भी पता नहीं कि आखिर इसमें होगा कौन। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। एंड व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? Try to take second derivative. Second derivative means d2y over dx2. That means d by dx of dy by dx. d by dx of dy by dx. What is the value of dy by dx? No. dy by dx, you have to evaluate dy by dx is equal to 0. What is dy by dx? Suppose y is equal to sin x, then what is the d by dx of sin x? Exactly, then this is the value of the dy by dx ना। वो तो आपने dy dx को 0 से इक्वेट कराया है, लेकिन सच में dy dx की वैल्यू है कितनी? cos x. So here d by dx of cos x, and d by dx of cos x is minus sin x, isn't? Now this is the d2y over dx2, right? So this is the second derivative. Now in the second derivative d2y over dx2, first try to take x is equal to 90 degree. X is equal to 90 degree. So if you will put x is equal to 90 degree, then that is minus sin 90 degree. And what is the value of sin 90? 1. Then final answer is minus 1. Second derivative is negative or positive. Second derivative is negative or positive. The second derivative is negative or positive. So if the second derivative is negative, then can you tell me this point, this 90 degree is the point of maxima or minima? If second derivative is negative, ये जनरल कंफ्यूजन होता है, जैसे नेगेटिव आता है ना आंसर, आपको मिनिमा लगता है, पर एक बात याद रखो, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब एक स्टेप बाद जाना। तो अगला स्टेप तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है, तुम नीचे जा रहे हो, उसका मतलब तुम कहां पे खड़े थे? मैक्सिमा पे थे। सेकेंड डेरिवेटिव मींस नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप नेगेटिव है, यानी नेगेटिव स्लोप वाला है, इसका मतलब तुम कहां पे थे? मैक्सिमा पे थे। तो x is equal to 90 degree is the point of, so because this is a negative, then that 90 degree is the point of maxima. अब ये जो एम्बिगुइटी थी, ये जो एक दुविधा थी कि 90 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसमें क्या पता चल गया? 90 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखो भाई 90 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Okay, now next one we have to check for the next point, right? We have to check for the next point, d2y over dx2 at the different angle. What angle? At 270 degree. That is equal to minus sine 270. Now sine 90 1, sine 270 minus 1. मैंने पहले ही बताया था 1 का अपोजिट -1 और 0 का अपोजिट 0 होता है, तो साइन 90 1, साइन 270 -1, then that is minus of -1, answer is +1. Then this this double derivative is positive or negative? Because this is a positive, then this point is point of minima. So there was a confusion कि 270 डिग्री क्या था, मैक्सिमा था या मिनिमा था, तो बेसिकली दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ग्राफ से भी यही बात क्लियर है, ग्राफ इज आल्सो सेइंग दिस, ग्राफ भी यही बात बोल रहा है कि 90 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 270 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। So in this way we can check the maxima and minima of the function, right? Try to note down it. Suppose they have asked for what is the maximum value of the function, इसका maximum value कितना होगा? तो आप 90 डिग्री यहां रख दो,
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 270 का वैल्यू -1, है ना। तो यहां से आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी और मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी। हाँ 11 ये बायो कंप्लीटेड। इसका हाँ प्रीवियस नोट्स का, हाँ कंटिन्यू यू कैन गो विद, यू कैन ऑप्ट एनी मेथड, अल्टीमेटली आपके कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए। हाँ ओके, साइड बुक जरूरत है लेने का। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी यू कैन गो विद एचसीवी, एचसीवी हाँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। If you really want to purchase any side book for physics, then you can go with, HCV, Concepts of Physics by H.C. Verma, right? But try to purchase an authentic book. आप कभी कभी ऑनलाइन में या कैसे भी मैं देखता हूं कि वो अच्छी क्वालिटी का बुक नहीं आता है, सस्ते दामों में वो खराब प्रिंट क्वालिटी का बुक आ जाता है। तो देयर इज अ बेसिकली जेन्युइन रीजन बिहाइंड इट। I have visited the शिक्षा सोपान आश्रम ऑफ एच सी वर्मा सर। मैं उनके साथ वर्कशॉप में रहा हूँ, काम किया हूँ, और सर का पद्मश्री अवार्डी हैं और उनका ढेर सारा पैसा चैरिटी में जाता है, मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाने में और तमाम चीज़ों में। ये उनका जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ये जितना रॉयल्टी उनको मिलती है, वो पैसा उधर जाता है। तो अगर आप नॉन ऑथेंटिक बुक लोगे तो वो पब्लिशर तो पब्लिश कर नहीं रहा है भारतीय भवन, तो उनको रॉयल्टी जाएगी नहीं, तो ऐसे लोगों की मदद नहीं हो पाएगी। तो आप और पब्लिकेशन जब पैसा नहीं पाएगा तो फिर वो पब्लिकेशन अपना वो प्रिंटिंग भी डाउन कर सकता है। तो एक अच्छी किताब आपके हाथों में मिलेगी नहीं, है ना। और ये किताब जितनी पहले लिखी गई थी उसके बाद आज भी ये किताब प्रोमिनेंट है। बाकी तो बहुत सारी बुक्स आ गई मार्केट में फिजिक्स को लेकर के, पर ये जो बुक है ना, मतलब अभी अगर आपसे कोई जेई के लिए बोले कि व्हाट इज द फर्स्ट बुक यू मस्ट हैव टू गो विद, देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। ठीक है, ओके क्लास। Presently we have at 28 now.
कैन आई क्लीन द बोर्ड नाउ? हो गया है बच्चे? शुड आई क्लीन? Right. So we'll do more practice on the maxima and minima. So for that practice purpose, we have a daily practice paper. Okay. Okay, class. The other derivative like that. Have we covered the chain rule also? हमने chain rule cover किया था? नहीं किया. Okay, कोई नहीं. Right. Okay, great. So there are so first question number, just try to go with question number 49 first. Question number 49. Question number 49. Question number 49. So in the question number 49, what they have given you? So there is a function y is equal to 2x cube minus 9x square plus 100, and you have to find out the minima point of the minima. You have to find out the point of minima, right? You have to find out the point of minima. ठीक है, आगे आंसर. So we have a 4 options, 0, 1, 2, 3. Which option? 0. If you really want to do something, then try to solve the problem. क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या करना है? इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है ना? पॉइंट ऑफ मिनिमा. देन व्हाट इज द फंक्शन? y is equal to 2x cube minus 9x square plus 100. So we have to find out the point of minima, है ना? तो we have to find
point of minima. Great. So what is the step number 1? What is the step number 1? What is the step number 1? First try to take the differentiation of the function, then equate it with 0. Step number 1, first dy dx, try to evaluate the value of dy dx, right? And what is the dy by dx? That is d by dx of 2x cube minus 9x square plus 100 is equal to d by dx of 2x cube. Then 2 is the constant and derivative of x cube 3x square. Then 3x square multiplied with the 2. Then that is 6x square. Is it clear? तो जो लोग पहले अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन नहीं देखे होंगे उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो हो जाएगा. इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? d by dx of 9x square. So 9 is the constant and d by dx of x square. d by dx of x square. That is a 2x na? And 9 into 2x? Then that is minus 18x. And d by dx of 100? d by dx of 100, 0. किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव. So finally this is the value of, this is basically dy dx. Then to find either minima or maxima, what we have to do? dy dx should be equated with the 0. If I will equate it with 0, then what will happen? 6x square minus 18x is equal to 0. Then should I take x common here? So x is common. If x is common, you can take x common or 6x common. Then that is going to be x minus 3 is equal to 0. Now we have a two values of the x. X equal to 0 as well as x equal to 3. X की दो वैल्यू आएगी, either 0 or 3. And these 2 points can be, this 0 can be maxima or minima. This 0 either can be maxima, ये maxima भी हो सकता है और ये minima भी हो सकता है. X equal to 3 क्या हो सकता है? It could be maxima or minima. Then what is the next procedure? What is the next step? What is the next step? We have to go with second derivative. Step number 2. So this was the step number 1. This was step number 1. Here, by taking the first derivative and equating it with 0, you have fetched that what are the points of either maxima or minima. Now it is time to find out. That which point is maxima and which point is minima. For that purpose, you have to go for the second derivative, d2y dx2. That is d by dx of dy dx. And what is the value of dy dx? 6x square minus 18x. That is 6x square minus 18x. Then d by dx of 6x square. 6 is constant. D by dx of x square 2x. Then that is 12x. Okay? D by dx of 18x. So 18 is the constant and d by dx of x 1. Then that is 12x minus 18. So this is the value of d2y over dx2. Now what we have to do? In d2y by dx2, first we have put the value of x is equal to 0. So if you will put x is equal to 0, then that is 12 into 0 minus 18, then that is minus 18. The double derivative is negative or positive? Double derivative is, because double derivative is negative, then this point is
x equal to 0 is the point of, this one is a point of maxima, right? So this is a point of maxima, right? This is a point of maxima. So because this is an objective question, then remaining third one, this would be minima. So this is basically maxima. This is maxima. So this would be minima. पर हम लोग चेक कर लेते हैं, right? Now d2i over dx2 here, d2i over dx2, हमें यहां पे x की कितनी वैल्यू पुट करनी चाहिए? x की कितनी वैल्यू पुट करनी चाहिए? 3. तो here we have to put the value of x equal to 3. If x equal to 3, then that is 12 into 3 minus 18. That is 36 minus 18. 36 minus 18 is plus 18. Then double derivative is positive. If double derivative is positive, then x equal to 3 is point of, exactly, x equal to 3 is the point of minima. The final answer is x equal to 3 is the point of minima. Doesn't? पक्का समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चे? ठीक है. Then should I go with the next problem? Erase कर दें? Great. Okay. Now next 51 and 52. Just try to do it fast. 51 and 52. हाँ 51 and 52. Okay. अब 51 answer is 1. Okay. नहीं 51 में आपको उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के एक स्टेप बियॉन्ड जाना है. तो पहले तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, और जैसे ही आपको ये पता चल गए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, फिर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा करके उसका मिनिमा की वैल्यू निकालनी है. क्या आएगा? 2. So we are, how many of you are getting that answer 2? Option B. 1 2 3 4 5. 2, right? So most of you are getting the same answer. That is a 2, isn't?
So how many of you are not getting the answer? क्लास के बाद भेजते हैं, अभी तुरंत भेजो। हिमांशु हिमांशु तिवारी एंड प्रियांशु यादव, क्लास 12th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, नहीं लास्ट में शायद है। Okay, so you have to find out the minimum value of the function. They who are not getting the answer, ऐसे बच्चे जिनको आंसर नहीं मिल रहा है, ग्रेट, आ जाओ भाई देखते हैं। Here y is equal to x square minus 2x plus 3. So this is the function. This is the function. What is the step number 1? Finding the point of maxima as well as minima. Now step number 1, dy dx, that is d by dx of x square minus 2x plus 3. Then d by dx of x square, it's a 2x. d by dx of 2x, d by dx of 2x, so it is a 2x का 2 होगा, माइनस साइन यहां रह जाएगा, तो 2x minus 2. Then that is dy dx, right? Now try to evaluate this dy dx is equal to 0. Then 2x minus 2 is equal to 0, right? Then 2x is equal to 2, then x is equal to 1. Now this point can be either maxima or minima. This x can be either maxima or minima. बोलो, ठीक है? Now how we can check that this point is maxima or minima? Then try to take that second derivative, d2y over dx2. d2y over dx2 कितना हो जाएगा भाई? d2y over dx2 कितना हो जाएगा? It is d by dx of 2x minus 2 ना? अरे बोलो तो। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अब ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, और उसमें x का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है। और अगर x का टर्म आ नहीं रहा है तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि वहां पे आपका वैल्यू 1 है या 2 आया है। बोलो, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई ना, तो फिर तुम्हें यहां इसको रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव आ गया। क्या डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया? देन व्हाटएवर पॉइंट यू हैव गॉटन, दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो जो भी आपको पॉइंट मिला है बेसिकली वो क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो उन्होंने ये नहीं पूछा है उन्होंने नहीं बोला है कि आप उस पॉइंट ऑफ मिनिमा को बताओ। वो क्या बोल रहे हैं? वो मिनिमम वैल्यू बताओ। तो y मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप यहां से y मिनिमम निकालना चाहोगे तो आप x की वैल्यू यहां पे 1 रखो, तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा? 3 plus 1 4 and 4 minus 2 2. Then the correct answer is 2. This is the correct answer. B is the correct answer, right? 2 is the correct answer. Now 52. Now next question. Now next question please. हाँ बताओ, क्या डाउट है? आपको हम आगे बैठा देंगे। सर वो मिनिमा निकाल दिया था मैक्सिमम में। क्या निकाल दिया था इसमें आपने? वो मिनिमा सर वहीं तक रोक दिया था, उसके आगे। अच्छा, सिर्फ पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला था, उसके बाद मिनिमम वैल्यू नहीं निकाला था। ओके, स्टेप 2। नाउ जस्ट गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ
हम्म, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, 4 is the maxima. What you have to find out here? What you have to find out here? Point of maxima or minima? You have to find out the minimum value of the function, ना? नहीं नहीं नहीं, बताते हैं क्या। अच्छा, आप ये कंपेयर कर रहे हो क्या, इन दोनों में मिनिमम क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? नहीं, देखो कोई जरूरी नहीं है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाली है ना, वो पॉइंट आपका मिनिमम, वो मिनिमम वाला पॉइंट होगा। x इक्वल टू 4 पे आपने क्या निकाला, ये +10 लिखा, तो दैट पॉइंट x इक्वल टू 4 इज द मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 52, आंसर इज पक्का? आ जाओ भाई, देखते हैं। चलो भाई इधर देख लो, आ जाओ। दे हैव गिवन यू y इज इक्वल टू x क्यूब, y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, एंड they are trying to ask you that what is the minimum value of the function, है ना? तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ट्राई टू टेक द डेरिवेटिव dy बाई dx। तो आप dy बाई dx निकालो, ये क्या आ जाएगा? d बाई dx ऑफ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, क्या यही आएगा? फिर ये क्या हो जाएगा भाई? इट्स अ 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। सो दिस इज बेसिकली dy dx। ना अब आप इसको क्या करना है, जीरो से इक्वेट करा देना है। अगर आप जीरो से इक्वेट कराओगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो एनी कॉम्बिनेशन, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा जी? नहीं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपैंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 14 आ गया, 24। नाउ ट्राई टू टेक 3x कॉमन हियर। तो 3x को कॉमन ले लें, ठीक है। 3x को कॉमन अगर लोगे, लेकिन 3x से ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2, सॉरी x माइनस 4 आएगा। और यहां से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं? -2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव अ x माइनस 4 एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट? ग्रेट। तो क्या है अपने पास? देखो, अब देखो अपने पास यहां पे यहां पे x की दो वैल्यू आ रही है। एक तो आप देखो, एक तो आ जाएगा x का वैल्यू 4 आ जाएगा। एक तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिकॉज x माइनस 4 कैन बी 0, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है? तो देखो आपका डाउट मैं समझ रहा हूं। आप देखो, आपका डाउट ये है कि सर देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो ये मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा। आपका ये कंफ्यूजन था? अच्छा, फिर क्या करना है? अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हमें पता करना है भाई कि इसमें से मैक्सिमा कौन है और मिनिमा कौन है। फिर क्या करना होगा उसके लिए?
जस्ट ट्राई टू टेक द डबल डेरिवेटिव ना, d2y dx2 बोलो तुम, ये क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 18, क्या ऐसा करेंगे, ओके सॉरी प्लस, दिस इज अ प्लस, ओके दिस इज अ प्लस 8 राइट, दिस वन इज अ प्लस 8, तो दिस वन इज ए प्लस 8, दिस इज प्लस 8, अब सही है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर that is 6x minus 14, then this is d2y over dx2। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 4 हियर, तो अगर हम यहां करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, d2y over dx2 at x इज इक्वल टू 4, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 4 माइनस 14, दैट इज 24 माइनस 14, दैट इज प्लस 10। Double derivative is positive. If double derivative is positive, then but obvious is this point is point of minima. So this is the minima. है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मिनिमा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको चेक करेंगे बच्चे, यहां पे अगर हम इसको चेक करें नेक्स्ट को, तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx2 एट x इज इक्वल टू 2/3, ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 2/3 माइनस 14, तो दैट इज 8/3 माइनस 14 ना, देन फाइनली दिस इज अ नेगेटिव आंसर, बिकॉज 8/3 छोटा होगा माइनस 14 बड़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज अ नेगेटिव, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव, देन क्या हो गया, सिक्स इंटू 2/3 ना, ओके 12/3 ना, अच्छा 3/4 जा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -10, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो बिकॉज दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, दिस पॉइंट इज, ठीक है, तो ये देखो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मिनिमा, ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा मैक्सिमा, ये क्या आ जाएगा मैक्सिमा, मींस ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इक्वल टू 4 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि वो वैल्यू वो बताओ, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बताओ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ये, कि उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अगर फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, और जब आप x की जगह 4 रखोगे तो जो आंसर आएगा वही y की मिनिमम वैल्यू होगी। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। अब अगर आपको यहां पे अगर इधर मैं लिख दे रहा हूं, अगर y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, x का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस, ये आ जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर एंड प्लस 8 इंटू 4 प्लस 5, आंसर बोलो। कितना आ रहा है, व्हाट आंसर आर गेटिंग, तो ये आ जाएगा आपके पास 64, दैट इज 64 माइनस, ये कितना आएगा, दिस इज -112 ना, और प्लस 32 और प्लस 5, देन दैट इज, इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 एंड 7 and 4 11, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास
ये 11 है ना, एंड दिस इज, ये कितना आएगा 111, कितना आ जाएगा भाई, नहीं ये कितना आएगा, ये तब पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो 64 प्लस, देखो ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 37 ना, एंड माइनस 112, ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 37, ये आ जाएगा आपके पास 1, और ये आ जाएगा 101 माइनस 112 ना, तो 101 माइनस 112 कितना आएगा -11, तो फाइनल आंसर क्या आएगा -11, क्या ऑप्शन में है, क्यों, दे हैव गिवन यू द ऑप्शंस, ऑप्शंस में दे रखा है उन्होंने, द करेक्ट आंसर इज -11, करेक्ट आंसर इज -11, तो फिर 4 क्यों बता रहे थे, नहीं तो दोनों बातों में फर्क है ना, आप पॉइंट ऑफ मिनिमा और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दोनों अलग अलग बातें हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आपको वहां से पता चल जाएगा, लेकिन कह रहा है कि उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही x का वैल्यू आपको उस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है, तो ये आपका देखो, बात आपको समझ आई, इसमें फंक्शन की का पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं निकालना था, उसके एक स्टेप बाद जाना था, मिनिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिनिमा क्या है, मैक्सिमा वाला कौन सा पॉइंट है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो आपने चेक किया कि यहां पर तो मिनिमा है फंक्शन, तो मिनिमम हो गया, यहां पर मैक्सिमा है फंक्शन, तो मैक्सिमम हो गया, वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके, सो this was the last application of the derivative, जहां पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा सीखा। फ्रॉम नेक्स्ट डे I will start with the integration, so it is Tuesday today ना, फिर उसके बाद आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग विद इन 2 और 3 डेज, मतलब 3 घंटा और मुझे चाहिए एटलीस्ट, विद इन 3 डेज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक हम लोग इसको कंक्लूड कर लेंगे शायद, और कंक्लूड करने के बाद मैंने प्लानर भी शायद अब तक पहुंचा हो ना हो, तो प्लानर में भी मैंने लगभग फ्राइडे तक का लेके मैं चल रहा हूँ कि फ्राइडे तक हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस खत्म करके फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स हम आ जाएंगे मैथमेटिकल टूल्स में ही, हम लोग आ जाएंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे। फिर वेक्टर विल टेक एटलीस्ट वीक, मीन्स एटलीस्ट 7 आवर्स, 7 घंटे तो लगेंगे। वेक्टर के बाद वी विल एंटर इनटू द काइनेमेटिक्स, पक्का। तो इस वीक का जो आपका प्लानर है, उस प्लानर में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना था, और वीकेंड पे आपको, सैटरडे पर आपको वेक्टर स्टार्ट करना था, ठीक है। कैन आई कंक्लूड माय क्लास? थैंक यू क्लास।